A very good morning to all of you, class 9. Today's video is much important for you. Just watch it very carefully and in a go and try to understand it. In case you have any problem and doubt, you can again watch the video. If you had subscribed the channel, then you can have the all the videos in the playlist. Okay, I have created a playlist for you. So in class 9 you can have all the videos, and also in for class 8 the first chapter, that is the rational number, is going on, and your chapter is very much linked to that. So in case you have any problem in the concept of 8th standard, you can go there in the 8th class playlist and can have the videos and can clear your doubts there. But for that it will be necessary to subscribe. Okay, then only you can get all the playlist of the channel. So now moving further, operations on real numbers की अगर हम बात करें, so real numbers are containing all the numbers. Okay, you know very well, real numbers are containing all the numbers, that is rational, all the numbers up to so on. जो भी आपने पढ़े हैं सारे नंबर्स को रियल नंबर्स लिए हुए हैं, दैट इज रैशनल एज वेल एज इररेशनल्स. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द रैशनल नंबर्स इन 8th स्टैंडर्ड, you have very well known and understood the properties of rational number. The जो rational numbers properties satisfy करते हैं, like आपके रैशनल नंबर्स जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, लाइक कॉम्यूटेटिव है ना. रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है ना, एंड you have done the associative and your distributive है ना. rational numbers were distributive over addition and subtraction, distributivity of multiplication over addition and subtraction. These were the properties that you have learned for the rational numbers in the 8th standard. And now you have known the irrational numbers. So irrational numbers की भी बात करें तो जो rational numbers property satisfy कर रहे थे, these are all satisfied by irrational numbers as well. irrational numbers भी इन properties को satisfy करते हैं. But when we talking about the operations, अगर operation की बात करें, ये तो property की बात थी, अगर operations की बात करें तो when you add, subtract, multiply और divide, जब आप ये operations, चारों operations rational number पर करते हैं, on rational numbers you get rational numbers. ओके, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा. ऑपरेशंस करने के बाद जो आपको आंसर मिल रहा था, दैट वाज रैशनल इटसेल्फ. सो बट इररेशनल्स की अगर बात करें, ऑपरेशंस की बात चल रही है. सो इररेशनल्स की अगर बात करें तो प्लस माइनस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, द 4 ऑपरेशंस ऑन इररेशनल नंबर्स अगर करते हैं, so it is not compulsory that you will always get an irrational number. Okay, so not necessary that you will get irrational number. मीन्स इररेशनल नंबर्स पर जब ये ऑपरेशन होंगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंसर में रैशनल नंबर मिल जाए. ज़रूरी नहीं है हमेशा इररेशनल ही मिलेगा, लेकिन ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर होते हैं तो आपको रैशनल ही मिलता है. ऑपरेशंस ऑन इररेशनल होते हैं तो आपको रैशनल या इररेशनल कोई भी नंबर्स मिल सकते हैं. लाइक टेकिंग एग्जाम्पल, इफ़ यू विल सी दैट √6 इज़ एन इररेशनल नंबर, और यू टेक -√6 as well irrational. If you take the sum, if you will add them, then √6 plus -√6, that is √6 minus √6, that is 0 है ना. and 0 is a rational number, 0 by 1 we can say. so 0 is a rational number. it means जब मैंने दो irrationals को subtract ऐड किया, दो irrationals को ऐड किया, तो मुझे क्या मिल गया, रैशनल नंबर. ठीक है ना, दो इररेशनल्स को मैंने ऐड किया तो मुझे रैशनल नंबर मिल गया. लाइक वाइज यू कैन से √6 by √6 you will get 1.
again rational. So it is not compulsory that when you apply the operations on irrational then the result will be irrational. It is not necessary. It can be rational or irrational. Now वो conditions क्या होती हैं जिनमें आपको rational मिलेगा या irrational? You can see, you can make a note for them like this. You can make a note that first is when you add or subtract an rational or irrational number, you will get an irrational number. It means when you add or subtract, जब आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं a rational and an irrational number, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, एंड रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर को जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं यू विल गेट इरेशनल नंबर. ओके, ओके मतलब रेशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो आपको इरेशनल मिला. नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई or have quotient means basically division, quotient of a rational and an irrational number, you will get irrational number. ओके, एंड इन केस आपने रैशनल एंड इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया देन यू विल गेट अगेन एन इरेशनल नंबर. इन द थर्ड केस इज when you add, subtract means having 4 mathematical operations, multiply or divide two irrational number. जब आप so it means in the second point is when you multiply or have quotient of a rational and an irrational number, you will get irrational number. Okay, and third point is when you add, subtract, multiply or divide two irrational numbers को लेकर के आप अगर 4 mathematical operations करते हैं, you can get an irrational or a rational number. You can get either an irrational. ठीक है ना, या तो आपको एक irrational number मिलेगा और rational number भी मिल सकता है. ठीक है, this was the example, like the example of root 6 by root 6. Okay, it is basically taking the quotient of two irrational number and you get the rational number. So it can be case that आपको rational भी मिल सकता है और irrational भी मिल सकता है जब आपके दोनों numbers irrational होंगे और ये operations आप irrational numbers पर कर रहे होंगे. Now moving further, there are some results. Okay, the results including the based on the operations on the real numbers. Okay, means rational as well as irrational numbers. So there are some results I am writing, and these are basically the general results that they are said for any general a and b positive real numbers. Okay, so you can verify the results by putting any value of a and b. So writing the results, you should note them in your copies and make the proper notes of all the videos as well. So result is, let a and b be two real numbers. Okay, a and b two real numbers हैं. Then the first result is root a multiply by root ab, root under root ab is equals to root a multiply by root b.
Okay, root a multiplied by root b. The dot shows the basically multiplication, or you can use the multiplication sign as well. Then the second result is root a by b is equals to root a by root b. It means जब आपका रूट ए रूट बी है तो आप उसको रूट ए बी की मल्टीप्लिकेशन करके अंडर रूट में लिख सकते हैं. लाइक एग्जांपल अगर मैं इसके साथ ही आपको दूं, लाइक यू हैव रूट 3 एंड रूट 5, सो इट इज़ बेसिकली रूट 15, क्योंकि अंडर रूट ए बी हो जाएगा. ओके, अगर इधर एग्जांपल है सेकेंड पॉइंट का, इफ़ इट इज़ रिटन 2/3 under root 2/3, so the root can be separated out in the numerator and the denominator. This is basically the result. You can write it as root 2 by root 3. Okay, now the third result is under root a plus root b under root a minus under root b is equals to a minus b. Most important result. Okay, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बिल्कुल डायरेक्ट. इट मीन्स अगर आपके पास एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूँ, ये आपका बेसिकली होता कैसे है, दो ब्रैकेट्स की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन हर एक दोनों नंबर से करते हैं. ओके, मेंटेनिंग द साइन का ध्यान रखते हुए कि पॉजिटिव नेगेटिव किसकी मल्टीप्लिकेशन चल रही है, इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन आप इन दोनों नंबर से करते हैं, अगेन मेंटेनिंग द साइन. सो दिस एंड द रिजल्ट योर कम दिस a माइनस बी. रिजल्ट ये आता है a माइनस बी. अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, दिस इज बेसिकली जनरली फॉर इंटीजर्स एंड फॉर रेशनल नंबर्स, यू हैव डन इट अर्लियर. ओके, दिस इज हेयर इज रूट, सो द नंबर्स आर इरेशनल. सो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, लाइक रूट 2 प्लस रूट 3, इट इज़ रिटन रूट 2 माइनस रूट 3, अगर ऐसा लिखा हुआ है. Okay, so the result will be your -2 minus 3 is equals to -1. Okay, this will be the result. Okay, this will be the result. A minus b that is -1 आ गया. और बेसिकली ये हो कैसे रहा है, आप ये देख रहे हैं, जब ये हो आप अगर इसको इंटीजर्स पे ले जा करके सोचें, ठीक है, यहाँ पर तो रूट है तो इरेशनल्स है, इसको ना पुरानी क्लासेस से, छोटी क्लासेस से रिलेट करिए और इसको इंटीजर्स पे ले जाके सोचिए. तो जब आप a प्लस बी और a माइनस बी की इंटीजर्स पर, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी की जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या नेचुरल नंबर पे सोच लीजिए और छोटा जाना है तो आपका ना रिजल्ट क्या आता है, a² माइनस b² आता है. दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं आप. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं ना, तो रिजल्ट a² माइनस b² आता है. आप दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट. तो a² माइनस b² आता है. तो यहाँ पर a माइनस बी क्यों है, यहाँ पर a माइनस बी इसलिए है, ये बेसिकली आपका एक्स्ट्रा मैं समझा रही हूँ. तो यहाँ पर a माइनस बी इसलिए है क्योंकि आपका रूट, यहाँ पर जब आप इसको रूट a है ना, रूट a और रूट बी है ना, रूट ए रूट बी, तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग टू दिस आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए ना, रूट a² माइनस रूट b². इज़न्ट इट? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. देखो, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, रिजल्ट होता है a माइनस बी. रिजल्ट आ गया आपका सीधा. अब ये रिजल्ट आ कैसे रहा है, मैं आपको रिलेट कर रही हूँ, इसको रिलेट करवा रही हूँ कि ये आप नेचुरल नंबर्स पर सोच के देखिए, या पुरानी क्लासेस में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर सोच के देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स में तो a² माइनस b² आता है ना, ठीक है. तो अगर ये a की जगह आप रूट a मान लें, b की जगह रूट b मान लें, तो कुछ ऐसा आना चाहिए ना, रूट a² माइनस रूट b². तो बेसिकली रूट a² माइनस रूट b² है क्या, इट इज़ a माइनस बी. इट इज़ a माइनस बी, इसलिए हमने यहाँ पर आपका a माइनस बी लिखा है. और ये a माइनस बी क्यों होता है ये समझ लीजिए. रूट a² इजिकल्स टू क्या है, रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट a, और रूट a का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a इज a टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर हाफ. ओके, एंड इट इज़ a टू द पावर. अब एक्सपोनेंट एंड पावर आ गया 7th क्लास का.
एक्सपोनेंट पावर आ गया 7th क्लास का, a टू द पावर हाफ प्लस हाफ, इट मीन्स a टू द पावर 2/2, it means a to the power 1, that is a. Therefore root a square is equals to a. Similarly root b square is equals to b. या आप कह सकते हैं कि अगर रूट सी इज मल्टीप्लाई बाय रूट सी है तो आंसर इज सी, दैट इज, और एग्जाम्पल ले लीजिए, दैट इज रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 2, रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 इज 7, रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 इज, सेम नंबर की जब रूट से मल्टीप्लाई होगी, रिपीटेड होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो वो नंबर अंदर वाला नंबर आ जाएगा. दिस इज द रिजल्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस द कॉन्सेप्ट 3, द पॉइंट 3 क्लियरली. ओके, यू कैन रिपीट द वीडियो एंड अगेन listen again and it will be very clear to you. Okay, this is the basic concept. ओके, आगे की जो रिजल्ट में लिखने जा रही हूँ ना, सब में इसी का यूज़ हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं, आप उसको खुद वेरीफाई करके देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद. देन योर फोर्थ रिजल्ट इज a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा ऊपर हो गया, जस्ट a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी. ये ना आप खुद ओपन करके देखना ब्रैकेट्स, और जो मैंने प्रीवियसली अभी आपको थर्ड पॉइंट में कॉन्सेप्ट समझाया ना, उसको इसमें अप्लाई करके देखना है एंड खुद ओपन करके देखना ब्रैकेट्स, ये आपको ग्रेजुअली मिलेगा. ओके, ये कुछ भी, ये बिल्कुल मीन्स सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं, कोई भी इसको रेक्टिफिकेशन या रोट लर्निंग में ना लें. ओके, रूट ए, तभी मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर से भी रिलेट करके कॉन्सेप्ट समझाया. रूट ए प्लस रूट बी, द फिफ्थ पॉइंट, रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, चारों अलग अलग नंबर्स हैं तो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो रूट रियल नंबर में, रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो देयरफॉर ये कैसा रहेगा, दिस विल बी रूट, इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, है ना, सो इट विल बी रूट ए सी, देन ए की मल्टीप्लिकेशन डी से, प्लस रूट ए डी, प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन सी से, रूट बी सी, प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन डी से, रूट बी डी. This is the result. This is the fifth result. Now the last, the sixth result, root a plus root b square is equals to a plus 2 root a b plus b. यहाँ पर कुछ नहीं है, रियल नंबर जो आपकी इंटीजर वाली या नेचुरल नंबर वाली a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है ना, यू हैव दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द आइडेंटिटी ना, वही आइडेंटिटी सिर्फ यहाँ पर यूज़ हुई है जो मैंने आपको रूट 3, द थर्ड पॉइंट में जो आपको रूट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ना, द रिजल्ट्स बेसिकली जो आपको मिल रहे हैं, ये दीज आर ऑल द रिजल्ट ऑफ दैट थर्ड पॉइंट. तो आप इस थर्ड पॉइंट को ध्यान से समझें और देखें. नाउ मूविंग फर्दर, just taking an example, a single example I am taking today, and single example so that आप वीडियो को ध्यान से देखें और जो कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रही हूँ उसको बहुत अच्छे से समझें. तो 5 प्लस रूट 7, 5 माइनस रूट 7. ओके, तो ये आपका जो पॉइंट मैंने you can say the fourth point here, फोर्थ पॉइंट है ना, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, a स्क्वायर माइनस बी. डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी होता है ये, टेक इट अदरवाइज, इसका रिजल्ट ये होगा a स्क्वायर माइनस बी इस पॉइंट से भी, और अगर थर्ड पॉइंट को देखें तब भी, तो मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे होगा ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी, सो इट विल बी 5 स्क्वायर माइनस रूट 7, सो इट विल बी योर रूट 7 नहीं, ओनली 7. ओके, रूट इज नॉट देयर, वेरी सॉरी क्लास. सो दिस इज रूट बी ना. ओके, सो
5 square minus 7, and it is your 25 minus 7, and it is your 18. The 18 will be the answer. This is all for today. Just watch the video carefully, and in the next video we will be doing the rationalization of irrational number. Okay.